Good evening and welcome to the News Hour Agenda. I'm Madhav Gopalakrishnan. We're bringing you this very special show from the banks of the Saryu in Ayodhya. But even as the D-Day comes closer, politics only continues to peak as far as the Ram Temple is concerned. A key India alliance partner, the Shiv Sena UBT Sanjay Raut, has now made a startling claim. He says that the construction of the Ram Temple is happening from a spot that's 4 kilometers away from the place of birth of Lord Ram. And it wasn't just Sanjay Raut but also key India alliance member, the Congress party's Digvijay Singh, accusing the BJP, the VHP and the RSS of not being genuine towards the cause of building the Ram Temple. The BJP, however, refuted these allegations. रीजन क्या है आप जाकर देखिए, जो गर्भगृह था वहाँ मंदिर होना था, जो हमने गिराया था वहाँ मंदिर होना था, वहाँ मंदिर बन गया क्या? मंदिर वही बनाएंगे, वहाँ मंदिर नहीं बना। आप जाकर देख लीजिए ना। ये नारा क्यों दिया था आपने? जनता को मूर्ख बनाने के लिए। देखिए, पहली बात तो मैंने जिंदगी में ये फलसफा मेरा है कि मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए। आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और अब इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये जो उद्धव ठाकरे जी की सेना कर रही है, ये बहुत गलत है। The new theory floated by India leaders hasn't gone down well with religious leaders, particularly those here in Ayodhya, who fact-checked this claim. जैसे है क्या, मुझको लगता है कि वो बाबर का भूत उनके अंतरात्मा में आ गए, क्योंकि रोज भाई वो बाबर को ही याद करते हैं, क्योंकि वाकई में बाबर के बेटे हैं। अरे भाई, कभी वो जो आया ही नहीं है अयोध्या में, आया होता तब तो पता होता। इसीलिए तो हम लोग शुरू से चिल्लाते थे। मैं चिल्लाता था भगवान राम सबके, किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं। अगर ये कालनेमी लोग पहले आए होते तब उनको पता होता। जिसने वहां राम जन्मभूमि मंदिर पर पैर ही नहीं रखा, जिसका निष्ठा ही नहीं भगवान राम के प्रति, वो कैसे जानेगा राम मंदिर? बाबर को देखा है, इसलिए बाबरी मस्जिद की बात करता है। Meanwhile, Rahul Gandhi also attacked the 22nd of January function, calling it a BJP RSS event. The RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function. And I think that is why the Congress president said that he would not go to the function. It is difficult for us to go to a political function which is designed around the Prime Minister of India and designed around the RSS. हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। Well, our rally, our yatra has a fixed route and we're going to follow that route. We're going to follow the route that I am on. This is a route that we have designed and we're going to stick to this route. And where will be you on 22nd? I actually don't know. I can check and tell you. But I will be somewhere on the route of the yatra. I think we will be in Assam. जो सचमुच में धर्म को मानता है, धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहाँ पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं। You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. And for more of this, let's go right across to our guest joining us
With us is Harish Chandra Srivastava, spokesperson of the BJP. With us also is Dr. Raghavesh Das Vedanti Bhant of the Vashisht Bhavan Hindu Dham Ayodhya. With us is Shubhankar Bhattacharya, political analyst. Shravan Pandey, leader of the Congress party, also joining us on the broadcast. Let me start first and foremost with the spokesperson of the BJP, Harish Chandra Srivastava जी. सबसे पहला सवाल आपसे है, ये जो आरोप लग रहे हैं संजय राउत के द्वारा, दिग्विजय सिंह के द्वारा कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर नहीं कंस्ट्रक्ट किया जा रहा राम मंदिर, उससे 4 किलोमीटर दूर है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, दिग्विजय सिंह हो या संजय राउत हो, आज ये सब लोग, एक कहावत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज जब पूरा देश और दुनिया भर के भगवान श्री राम के भक्त उल्लासित हैं, हर्षित हैं, आह्लादित हैं, उमंग में हैं, उत्साह में हैं, तब ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि ये सब लोग इनको न तो प्रायश्चित कर पा रहे हैं, न देश की सम्मानित जनता जनार्दन से क्षमा मांग पा रहे हैं, और न ही इसको स्वीकार कर पा रहे हैं, इस सत्य को, भगवान श्री राम के अखंड अनादि अनंत स्वरूप को न तो स्वीकार कर पा रहे हैं। मैं दिग्विजय सिंह जी से या संजय राउत जी से ये सवाल करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या कोई भी लड़ाई 500 वर्षों तक चली? 500 वर्षों तक लगातार अपने इस आराध्य के लिए जो लोग लड़ते रहे, आज अगर वो संघर्ष सिद्धि तक पहुंचा, संकल्प सिद्धि तक पहुंची है, तो इस बात का प्रमाण है जी कि भगवान राम की अनंत में जो व्यापकता है, जो उनका अनंत स्वरूप है, आज वो जन जन के रूप में पूरी तरह से उल्लास और हर्ष के साथ श्री अयोध्या जी पधार रहा है। पांडे जी, जवाब दीजिए कि आज कांग्रेस पार्टी के कई नेता राजनीति की वजह से इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनको ये पच नहीं रहा कि ये फाइनली राम टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो गया और प्राण प्रतिष्ठा होने वाली 22 जनवरी को। जवाब दीजिए इनका। बिल्कुल जवाब हम दे रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में राजनीतिक सियासत राम के जरिए कर रही है, आपने अभी देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान आ रहा है कि हम 400 पार, राम के नाम पे 400 पार। क्या वाकई में धर्म और राजनीति को जिस तरीके से इन्होंने सम्मिलित करके और देश की जनता को पूर्ण रूप से बेवकूफ बनाने का काम किया है? आज क्या एम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं ये? आज क्या रोजगार देश के युवाओं को नहीं चाहिए? लेकिन सिर्फ और सिर्फ राम का नाम है, राम के नाम पे जितना लूटना है लूट सकिए, मुंह में राम बगल में चूरी। ये लोग धर्म के व्यापार बने हुए हैं। आज धर्म आस्था का प्रतीक है, भगवान राम श्री सबके हैं, लेकिन इन्होंने भगवान राम को एक सीमित दायरे में रख दिया है। आज बताइए, मैं भी इसी अयोध्या की धरा से आता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के या देश के प्रधानमंत्री से, आज निर्माणाधीन मंदिर है। आपसे सवाल ये है कि अगर आपकी सारी बातें तो मैं बीजेपी से पूछूंगा ये, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई तथ्य है कि 4 किलोमीटर दूर मंदिर बनाया जा रहा है जहाँ बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया? आप अयोध्या से, आप तो जानते होंगे मंदिर कहाँ बन रहा है। आपके पार्टी के नेता सही है कि गलत है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से करोड़ों इन हिंदुओं को गर्व है और मैं भी गौरवान्वित होता हूं, मैं भी एक सनातनी हूं। लेकिन आज ऐसे लोग जो लोग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि आप हिंदू हैं, अगर भाजपा का झंडा नहीं आप लिए हैं। मंदिर कहाँ बन रहा है पहले ये बताइए। मंदिर बन रहा है, सीधा सवाल, कहाँ बन रहा है? गलत जगह पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सही जगह बन रहा है, गलत जगह बन रहा है? अयोध्या में ही बन रहा है। 4 किलोमीटर दूर, अयोध्या में ही बन रहा है। सवाल है 4 किलोमीटर दूर बन रहा है कि नहीं बन रहा? अयोध्या में बन रहा है। हमें जवाब दीजिए। जवाब मैं दे रहा हूँ, जवाब पूर्ण रूप से दे रहा हूँ, लेकिन हमारे पास हमेशा जवाब होता है। कैसा जवाब है हमारे पास? दिग्विजय सिंह सही है, संजय राउत सही है? देखिए, दिग्विजय सिंह और संजय राउत का जो बयान है वो पूर्ण रूप से सच है, तभी उन्होंने बयान दिया। सच है? बिल्कुल सच है। तो आप मानते हैं कि 4 किलोमीटर दूर बन रहा है मंदिर? नहीं, 4 किलोमीटर दूर मंदिर वही तो कह रहे हैं। अयोध्या में बन रहा है। अयोध्या थोड़ा डिस्टेंस अयोध्या में। अभी रामलला कहाँ है? रामलला के प्राण प्रतिष्ठा नहीं है क्या? रामलला की जो मूर्ति रखी गई है, क्या वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है? इससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब दीजिए। वो सवाल, इस सवाल पे आऊंगा मैं एक एक करके। डॉक्टर राघवेश दास वेदांती, जवाब दीजिए, क्या गलत जगह पे मंदिर बन रही है? मंदिर बिल्कुल अपने स्थान पे बन रहा है, जहाँ पर जिस भूमि पर भगवान श्री राम ने जन्मभूमि में अथात्मना ब्रह्मांड की जो सर्वलोक नमस्कृत भूमि है, जो पुण्यतम भूमि है, उस भूमि पर भगवान श्री राम लला का मंदिर बन रहा है। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। भगवान श्री राम दिव्य लक्षणों से समन्वित
जिस पुण्यतम भूमि पर अवतरित हुए, जन्म लिए, वह वही भूमि है जहां पर भगवान रामलला का भव्यतम मंदिर तैयार हो रहा है। महाशय का प्रश्न है कि क्या वो मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं है? हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में चल प्रतिष्ठा होती है, अचल प्रतिष्ठा होती है। वहां पर जो रामलला अभी जो दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं वो सचल प्रतिष्ठा मूर्ति की हुई है, और अब रामलला जी की वहां प्रतिष्ठा होगी, वो भी अचल होगी और सचल होगी। दो तरह की प्रतिष्ठाएं होती हैं। जो मूर्तियों को बाहर निकाला जाता है, सावन के झूलों में झुलाया जाता है, नगर भ्रमण कराया जाता है, भक्तों के करीब ले जाया जाता है, वो मूर्तियों की सचल प्रतिष्ठा होती है। और जो रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठित होने जा रही है वो अचल और सचल दोनों, दो तरह की मूर्तियों की प्रतिष्ठापना होने जा रही है। I want Shubhankar to come in. Shubhankar, इनका जवाब दीजिए, because here you have politics happening over the Ram temple. Perhaps that is understandable, but to make claims that are not borne out by facts, that's where things become a little grey and people start wondering why is this politics happening, because you have a number of residents of Ayodhya who are quite outraged with the suggestion that it's not happening at the spot where the disputed structure once stood. Well, Madhav, one thing is quite clear, that the politics within the Ram, the version of Ram that is created by the BJP, that is quite evident over here. There are discussions, there are controversies. See, Ram is above all controversy. I think you must be aware that Times of India, your Bengal version, has already covered that there is a Ram Mandir which was brought up in Midnapur in Bengal just 10 days before. And see the interesting part of it. Who all were involved? The municipal chairman over there, that is Somen Khan, he was involved in bringing that Ram Mandir. So is that Ram any different from the Ram in Ayodhya? That is a big question which I think everyone sitting over here on this panel should actually answer. Number two, you think that my Ram, there is a, Bengal also set a narrative because it was, it aimed towards secularism, so it couldn't get that sort of spread. That said that Amar Ram Ami Jani, Kikore tar pujo sewa ami jani. Means my Ram, I know how to worship him, where to keep him, where to just worship him, how to worship him. That should be my choice of decision. But when you try to overtake that, when you try to paint everything, the moment you enter Ayodhya, the more than Ram you can see Modi ji and Yogi ji on both the side of the road. And that is the thing. I must be asking the Guruji sitting over here is much learned rather than me. So I should be asking him, please tell me, is the Shankaracharya in Sanatan Dharma still remains relevant? क्या आज भी वो रिलेवेंट हैं? क्या उनकी दरकार है? मैं ये जानना चाहता हूँ। जवाब दीजिए। ये भगवान राम इस देश की अस्मिता है और कोई वो अनंत है, अखंड है, ये सबको पता है। लेकिन कोई अपने पिता को नहीं भूल जाता, कोई अपनी जन्मभूमि नहीं भूल जाता। श्री अयोध्या जी भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, यह अवतरण स्थान है और ये मर्यादा की बात थी, इस देश की गौरव और अस्मिता की बात थी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आई। भारतीय जनता पार्टी के लिए श्री अयोध्या जी में भगवान श्री रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बने, ये राजनीतिक विषय नहीं था, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये आस्था का मुद्दा था। और उस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं माना, लेकिन इस देश की आस्था, इस देश के गौरव, भारतीय संस्कृति और देश की आस्था में आपके राष्ट्रपति जो लड़ाई लड़ी, द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं रखा अपने बीच में? आज ये सारे लोग वो इसके पॉलिटिक्स के बाहर हैं। 1 मिनट, द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट किया गया है। 1 मिनट, जस्ट लिसन मी। But 1 minute, just listen me. that is her call now. But your question on Shankaracharya, let him respond. Shankaracharya पे जवाब दीजिए, because at least the latest from what I know, 3 of the Shankaracharyas have clarified. I am just replying him. Yes. ये सारे लोग, ये जितने भी दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अछूत समझते थे, भगवान का राम का नाम लेने में ये इनको हिचक होती थी, मंदिर जाने में, टीका लगाने में हिचक होती थी, आज सब कह रहे हैं कि वो जन जन के राम है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों की जीत है। और दूसरी बात, जो शंकराचार्य का पद बहुत महनीय पद है सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में, और उनका सबका सब पूजनीय है, बंदनीय है। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो मंदिर को बना रहा है, उस ट्रस्ट ने
जो निर्णय लिया कि कौन उसके जो IT सेल को रिचुअल्स जो होते हैं, वो तो कुछ जो और ही रिचुअल्स पेंट कर जो रहे हैं। होते हैं आज उसका आपका IT सेल संपादन कुछ और पेंट कर रहा है। नहीं, आपको नहीं मालूम है। कोई भी रिचुअल शंकराचार्य नहीं, आप सब दंडधारी जितने जने सन्यासी यहाँ पे हैं कोई अपना रिचुअल नहीं मोबाइल खोलें करते। और देखें कोई भी रिचुअल कि आज के दंडधारी दिन में सन्यासी विलेन नहीं बनाया करते। जा रहा है आपको ये मालूम नहीं शंकराचार्य, जितने है शंकराचार्य जो शंकराचार्य हैं, जो पूजनीय वंदनीय शंकराचार्य हैं, वो कोई रिचुअल नहीं करते। रिचुअल हमेशा आचार्य लोग करते हैं। और राम, ये जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, इसमें जो रिचुअल है वो काशी के और इस देश के जो माननीय आचार्य लोग हैं उसका वो संपादन करा रहे हैं। बाकी आचार्य जी I want to come in on this. All right, आप जवाब दीजिए। देखिए, शंकराचार्य हमारी जो सर्वोच्च पीठ है, भारत के सभी लोग शंकराचार्य जी पर अपनी आस्था विश्वास रखते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी को ऐसे विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। जहां आस्था का विषय हो, श्रद्धा का विषय हो, वहां मैं निवेदन करूं, आप हंसिए मत, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप शुद्धानंद हर जी, कुछ बोले, लेकिन आज आपने शंकराचार्य को आप शंकराचार्य जी को भी यहाँ से ज्ञान दे रहे हैं। बिल्कुल मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। देखिए, सनातन धर्म देखिए, ज्ञान की आवश्यकता सबको होती है। बोलने दीजिए, आप जवाब दे सकते हैं। 1 सेकंड, लेट हिम स्पीक। सिंह दल का शावक गज दल की गर्जना स्वीकार नहीं करता, विद्या कभी आयु का इंतजार नहीं करती। क्या शंकराचार्य खिलाफ थे मंदिर के? नहीं, मंदिर के खिलाफ नहीं उन्होंने थे। सिर्फ कहा कि जल्दी क्या थी। क्या अगर जल्दी सिर्फ इस वजह से नहीं कि चुनाव नजदीक है? उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही देखिए, कि मंदिर 22 गर्भगृह का क्यों? पूरा निर्माण, एक मिनट, आप सुन लीजिए। गर्भगृह का पूरा निर्माण पूर्णता हो चुका है। बाकी मंदिर बनने में कम से कम 1 दशक लगेंगे। जो मंदिर का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो बनना है, जो उसका मूर्त रूप दुनिया के सामने आना है, उसको बनने में कम से कम 2032 तक लग जाएंगे। तो हमारा जब गर्भगृह बनकर तैयार है, तो हम इतने रामलला जी को अभी टाट में आप लोगों ने रखा, अभी वो काठ में है। ठाट में जाने में आपको आपत्ति क्या है? जब सैकड़ों साल हम इंतजार कर ही सकते थे तो 10 साल और इंतजार No, but करते, Shubhankar, that is the लेकिन एक problem. कंप्लीट चीज आती थी। Shubhankar, that is the problem. This is the problem that BJP will say. Why are you dealing the question? One second, the question that many will say. एक सेकंड, मुझे जरा बात दीजिए। It has already been delayed by 500 years and you want to delay it even further. एक सेकंड, मैं वही सवाल उससे पूछ रहा हूँ। सवाल ये उठता है that when Kapil Sibal goes to the court and he says that why wait now, why not wait till the next general election? Every time there is an attempt to delay the Ram temple consecration by opposition parties is a charge that BJP has been consistently making. So once again you are saying the same thing. No, Madhav, there is a difference. See, either we have to follow, either you have to abolish the system of Shankaracharya completely from the Sanatan Dharma. But while you actually state his position, where we actually take them, the Shankaracharya is the ultimate leader of the Sanatan Dharma. So we have to follow the course which has been set. At least you have to involve him inside. While you are deciding a factor of... राम मंदिर का विरोध नहीं किया। हाँ। हम राम मंदिर आएंगे नहीं, मैंने बाद में आएंगे। But आपके गुरुजी, मैं आपके पूरे आपको जितना ज्ञान है मैं उसको प्रणाम करते हुए कह रहा हूँ, सिर्फ कृपया इतना बताएं, शंकराचार्य जी यही तो कह रहे हैं कि आखिर जल्दी क्या थी? अगर आपने सैकड़ों साल इंतजार किया तो चुनाव से पहले इसकी जल्दी आप लोगों ने क्यों लगाई? देखिए, आप लोग कोई विषय नहीं रहा तो शंकराचार्य पे आ ये गए। कोई विषय मैंने नहीं है, आपको देखिए, पहले बताया मैं कि शंकर शंकराचार्य पूछना कोई चाहता रिचुअल हूं। संपादित नहीं करते। आप लोगों के पास जिस शंकराचार्य आप लोगों को तो प्रायश्चित करना चाहिए। आप लोगों को प्रायश्चित करना चाहिए। आपको पता है, और देश की उनके बारे में आप जानते हैं। श्रीवास्तव जी, अब ज्यादा मैं शंकराचार्य जी के बारे में क्या कहूँ, छोटी मुंह बड़ी बात। श्रीवास्तव जी, नहीं, आपको पता है कि नहीं पता है? मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा। सवाल अगर आपके आपसे सबके पूछना किसी के चाहता हूं। घर में माधव अगर पूजन होता है, आप वहाँ पे एक पॉलिटिशियन को बुला के पूछेंगे कि वहाँ पे आप किसी महान को और उनसे पूछेंगे समय कौन निकालता है? But Shubhankar, you have not answered the boot question. The boot question is the temple being constructed in the correct spot or not? Why are opposition leaders constantly peddling what is a lie? See, The question they are asking. none of the Why leaders, are they saying that? I won't reply on anything which Sanjay Raut, that is his personal remark, that is his personal finding. Digvijay Singh is also saying something That is similar. up to Mr. Sanjay Raut to actually say that Is why he right or wrong? exactly come. I completely don't agree with it. I'm saying I completely don't agree with it. That is I'm the not agreeing clarification. with it. That is the clarification. See, the spot, the place, everything might have the people have gone through the deepest research. That the research let Sanjay Raut come up with his own research.
I'm not contradicting it. I'm the only question over here that I'm raising over here, that whether we should include the Shankaracharyas, we should include The the Shankaracharyas other themselves have stakeholders. clarified. Three of the also inside Shankaracharyas have clarified. But I want to take off from what Shravan has said earlier. एक सवाल श्रीवास्तव जी आपसे ये बनता है, ये कह रहे हैं कि बार-बार बीजेपी इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है. अब की बार 400 सीट आएंगे. एक सेकंड, ये इनका आरोप है. 1947 में जब देश आजाद हुआ, जब कांग्रेस सत्ता में थी, 70 साल देश का राज की, यहाँ अयोध्या में विक्टोरिया पार्क का वो तुलसी उद्यान बना दिया गया. राम मंदिर को विवादित ढांचे को राम मंदिर नहीं बनाया जा सकता था? तब उस समय कांग्रेस के कान में और आंख में जू नहीं रेंग रही थी. और जब भारतीय जनता पार्टी ने उसका निदान किया, जो दुनिया में किसी ने कल्पना नहीं किया था, लोगों ने सपने नहीं देखे थे, लोग महाराज ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है राम मंदिर या भारतीय मोदी जी बनवा रहे हैं? मोदी जी कोर्ट के फैसले से बन रहा है. ने अपना योगदान दिया है, उन कार्यसेवकों ने अपनी आहुति दिया है. महोदय याद कीजिए 2010 में जब निर्णय आया, ट्रिपल बेंच का तो क्या निर्णय आया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए ट्रिपल बेंच का क्या निर्णय था? इजी टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इजी. जो जन आस्था का सम्मान करेगा, जनता जनार्दन उसका सम्मान करेगी. भारतीय जनता पार्टी ने जन आस्था का सम्मान किया और उस संघर्ष को, उस लड़ाई को लड़ा, जिससे आज ये 500 वर्ष की जो लड़ाई है, वो संकल्प जो है वो सिद्धि को प्राप्त हुआ. तो उसका जो ये स्वाभाविक है, ये बहुत स्वाभाविक है, ये बहुत बट नेचुरल है कि उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जनता जनार्दन की भावनाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया. और भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य मंदिर को साकार करने के लिए साकार भारतीय जनता पार्टी है, सरकार नहीं कर रही है, वो श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है. लेकिन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये साकार हुआ, इसलिए जनता जनार्दन को ये उत्साह. I want to ask a question of Shravan, सवाल ये उठता है कि ऑपोजिशन में भी तरह तरह के वॉइसेस हैं. आज ओवैसी जी केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बुला रहे हैं, तो कौन सही है इसमें? आप सहमत है ऐसे स्टेटमेंट से? देखिए, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, वही वाली बात है. वो तो बीजेपी के ही लोग हैं, तो वो किसी को छोटा रिचार्ज बताएंगे, किसी को हज का बहुत छोटा रिचार्ज बता देंगे. सवाल ये है कि राम कौन है? राम हम जानते हैं कौन है. हमें बीजेपी वाले आज जिस तरीके से कह रहे हैं कि राम को अब हम ला रहे हैं 22 तारीख को, राम सदा सर्वदा है और सनातन का कोई ना आदि है ना अंत है. लेकिन आज सवाल उठ जाता है कि कहीं में क्या भारतीय जनता पार्टी को इस राम मंदिर के पीछे आना चाहिए था? हमारे धर्मशास्त्रों ने बताया हमें कि राम कौन है, लेकिन आज उसका क्रेडिट बीजेपी ले रही है कि हम बता रहे हैं राम कौन है. नहीं, देखिए मैं कहता हूँ कांग्रेस के समय में खुला, मैंने कांग्रेस की उन्होंने अपना सीना चौड़ा करके मंदिर क्यों नहीं बनवाया? कांग्रेस ने क्यों उसका वो नहीं ले लिया योगदान? हम अपने समाज के जरिए हम अपने धर्म को रक्षा कर सकते हैं, ना कि हमें कोई सरकारें हमारे धर्म की रक्षा करती हैं. समाज का हमारा दायित्व है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें. पार्टियों को क्या हाथ होता है? तो 22 जनवरी को नहीं आना चाहिए, 22 जनवरी को सबको नहीं आना चाहिए. जी को किस लिए चुना गया था? सुप्रीम जब सारे राजनेता आ रहे हैं, जब सारे राजनेता आ रहे हैं तो उसमें क्या ऑब्जेक्शन? नहीं आ रहे, सबको इन्वाइट किया गया करीब. अब जब भगवान श्री राम 14 बरस का वनवास करके जब वो वापस अयोध्या आए थे, तो चाहे वो गरीब हो, चाहे केवट हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोग उनके स्वागत में पहुंचे थे. लेकिन आज 22 तारीख को वही पूंजीपति दर्शन करेंगे. क्या आम जनता करेगी? आप बता दीजिए शुभांकर जी, टीवी चैनल के माध्यम से. आम जनता 22 तारीख को आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है? आम जनता नहीं जाएगी. चंपत राय जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है 23 के बाद आम जनता जा सकती है. 23 के बाद आज नहीं आ रहे थे. भक्त नहीं है. 3 बजे के बाद लोग 22 को दर्शन करेंगे. भगवान श्री राम के नाम 3 बजे के बाद All right, we'll have to leave it there. आपको नहीं दिखाई पड़ रहे Completely out of time. लेकिन अयोध्या की गलियों मोहल्लों सड़कों में All right, राम भक्त all दिखाई right. पड़ रहे हैं, आमजन नहीं दिखाई पड़ रहे. All right. We'll have to leave it there. Completely out of time on this debate. Harishchandra Srivastava, Dr. Raghavesh Das Vedanti, Shubhakar Bhattacharya and Shravan Pandey. I'd like to thank all of you for joining us this evening. With that, we're going to wrap up this special broadcast and debate that we bring you from the banks of the Saryu in Ayodhya.